Hello everyone, in this tutorial we will learn how to make this thing. First of all हम कुछ text layers ऐड करेंगे. And hide the text layers. Then we will add some imaginary beats क्योंकि मैंने कोई ऑडियो नहीं लिया है. Then add a solid layer. फिर हम उस solid layer में element plugin ऐड करेंगे. After that go to custom layers, custom text and masks and select any text layer जिसका 3D बनाना है. फिर scene setup में जाएंगे and press this extrude button to make the text visible. Then go to presets, bevel and physical. यहाँ पे आपको काफ़ी सारे inbuilt preset मिल जाएंगे. You can choose whichever you want. After that hit OK to exit the scene setup. अब हम इस 3D text को animate करेंगे. To do that, go to group 1, particle look, multi object and enable multi object. मल्टी ऑब्जेक्ट को enable करने के बाद काफ़ी सारे न्यू सेटिंग्स विजिबल हो जाएंगे, बट हमें सिर्फ इनमें से दो ही सेटिंग्स में की फ्रेम ऐड करना है, रैंडम रोटेशन एंड डिस्प्लेस. Select the solid layer and press U on the keyboard to see the keyframes. Change the value of random rotation and move the keyframe at the end of the layer. Now change the value at the beginning of the layer. Select the keyframes, press F9, go to the graph editor and make a graph like this. Now we will change the value of displays. इस keyframe को हमें middle से थोड़ा सा आगे move करना है. लेयर के बिगनिंग में वैल्यू को फिर से चेंज करेंगे. देन गो टू द एंड ऑफ द लेयर एंड चेंज द वैल्यू सेम एज इन द बिगिनिंग. सिलेक्ट द की फ्रेम्स एंड प्रेस F9 to ease the keyframes. Go to the graph editor. In case you are seeing a different graph, right click and select the speed graph. Now make a graph like this. Then double click on the middle keyframe and check this continuous box and press OK. The animation is done. अब सॉलिड लेयर को डुप्लीकेट करके बाकी के बीट्स पे अरेंज कर देंगे. यहाँ तो सभी 3D टेक्स्ट सेम है. टू चेंज दैट हम कस्टम लेयर्स में जाके किसी दूसरे टेक्स्ट लेयर को सिलेक्ट करेंगे. एज यू कैन सी टेक्स्ट चेंज हो गया है. डू इट विद द रेस्ट ऑफ द लेयर्स एज वेल. मुझे इन ट्रांजिशन के बीच में एक 3D ऑब्जेक्ट ऐड करना है. So I'll replace one of the text with a 3D model. To do that, go to custom layers and select none. Then go to scene setup, click import and import any 3D model. In my case I've added a model of rose flower जो मैं description में provide कर दूँगा. After importing the 3D model, check this normalize size and OK. ठीक है. This looks fine. Now we will animate the camera. Add a 50 mm camera. Then add null object. Parent the camera layer to the null object and enable 3D. अब फर्स्ट सॉलिड लेयर के मिडिल में जाके कीबोर्ड में R प्रेस करेंगे और Y रोटेशन में की फ्रेम ऐड करेंगे. देन गो टू द मिडिल ऑफ द सेकंड सॉलिड लेयर. अब यहाँ Y रोटेशन की वैल्यू चेंज कर देंगे. सिलेक्ट द की फ्रेम्स एंड प्रेस F9. देन गो टू द ग्राफ एडिटर एंड मेक द ग्राफ शार्प एट वेयर द बीट इज. फिर से न्यू नल ऐड करेंगे और पहले वाले नल को न्यू नल से पेरेंट कर देंगे एंड अनेबल 3D ऑन दिस एज वेल.
सेकंड सॉलिड लेयर के मिडिल में जाके वाई रोटेशन में की फ्रेम ऐड करेंगे। देन गो टू द मिडिल ऑफ द थर्ड सॉलिड लेयर एंड चेंज द वैल्यू। की फ्रेम को सिलेक्ट करके प्रेस F9, go to the graph editor and make a sharp graph. Repeat the same process again. You might have noticed that यहाँ text में कुछ problem है, so let's fix it. To do that, go to group 1, particle rotation, and change the value of Y rotation to 180. Then go to render settings, physical environment, rotate environment, and change the Y rotation to 180. Text is back to normal. Do the same with the other layer as well. ओके, अब कैमरा लेयर को सिलेक्ट करके प्रेस P, देन एक की फ्रेम ऐड करेंगे एंड मूव इट फर्दर. नाउ इंक्रीज द Z पोजीशन वैल्यू एट द बिगिनिंग. सिलेक्ट द की फ्रेम, प्रेस F9 एंड मेक अ ग्राफ लाइक दिस. अब सेकेंड सॉलिड लेयर के मिडिल से थोड़ा आगे जाके वैल्यू को फिर से इंक्रीज करेंगे एंड मेक द ग्राफ शार्प एट द बीट. अगेन थर्ड सॉलिड लेयर के मिडिल से थोड़ा आगे जाके वैल्यू को डिक्रीज करेंगे और ग्राफ को बीट पे शार्प कर देंगे. फिर से फोर्थ सॉलिड लेयर के मिडिल से थोड़ा आगे जाकर जी वैल्यू को इंक्रीज करेंगे और बीट पे ग्राफ को शार्प कर देंगे. नाउ डबल क्लिक ऑन द की फ्रेम, फिर इस कंटिन्यूस बॉक्स को चेक करके स्पीड की वैल्यू इंक्रीज कर देंगे एंड ओके. ये सभी की फ्रेम्स के साथ करना है. The camera part is also done. I hope you people were able to understand what I did here. वैसे तो मैं ये प्रोजेक्ट फाइल प्रोवाइड कर दूंगा. अब हम एक बैकग्राउंड बनाएंगे. ऐड अ सॉलिड लेयर एंड ऐड CC पार्टिकल वर्ल्ड ऑन टू द सॉलिड लेयर. ये मेरी सेटिंग्स है, आप अपने हिसाब से भी बना सकते हो. Now select the particle layer and put it below the other layers and enable motion blur on every layer. ठीक है. Let me make an out transition on the camera layer. अब शेक्स ऐड करेंगे. मैं इस पार्ट को फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ, आप लोग इसके प्रोजेक्ट फाइल में देख लेना क्या क्या शेक्स हैं. Now select all the layers and split the unnecessary part and delete. अब एडजस्टमेंट लेयर्स को छोड़कर बाकी सभी लेयर्स को सिलेक्ट करके प्री कंपोज. फिर इस कॉम्प को डुप्लीकेट करके उसमें डीप ग्लो ऐड कर देना. कॉपी माई सेटिंग. And that is pretty much it. One more thing, अगर आप टेक्स्ट लेयर में कोई भी कैरेक्टर चेंजेस करेंगे
तो वो एलिमेंट में भी अपडेट हो जाएगा। लाइक दिस। एंड दैट इज़ ऑल। आई होप ये ट्यूटोरियल किसी के काम आ जाएगा।